Hello everyone, welcome to JVIS. My name is Sakshi and we are going to continue our series for Polity Previous Year's Q&A, where we are discussing the various questions that were asked in your UPSC CSE previous year's examinations, in your prelims examinations. We are discussing all the questions from the Polity section. So this is part 9. हमने काफी सारे questions जो हैं इसके पहले वाले parts में discuss कर लिए हैं. अगर आपको वो sessions देखने हैं तो आप playlist check कर सकते हैं. वहां पर आपको सारे के सारे sessions एक ही जगह मिल जाएंगे और आप सारे के सारे questions जो previous years के हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं. मैंने काफी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. इस सेशन में भी हम आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. बट बिफोर बिगिनिंग मैं आपको बताना चाहती हूं, अगर आप यूपीएससी सीएसई 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो वी हैव द सुपर 50 प्रोग्राम. अगर 2021 के लिए प्रिपेयर करें, द बेस्ट कोर्स इज द इंटीग्रेटेड जेएस कोर्सेज. ठीक है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर 2021. अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं एंड इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, देन यू कैन ज्वाइन द सुपर 50 प्रोग्राम विच इज डिजाइन फॉर 2 years. नाउ अगर आप मॉड्यूल कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, सच एज फॉर इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स राउंड ऑफ 365, तो या फिर सोशल इश्यूज, सो यू कैन ज्वाइन these module courses which are specially structured for that particular subject. Okay, so you can join by enrolling to the website www.jatinverma.org, and you can always contact on this number. So let's start our discussion on the questions. Okay, so the first question is, consider the following statements. दो statements दी हुई हैं, इनको आपको solve करना है. First statement is Article 371A and 371I. They were inserted in the Constitution of India to meet the regional demands of Nagaland, Assam, Manipur, Andhra Pradesh, Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh and Goa. ठीक है, क्या ये दो articles they were inserted for putting up the demands of these particular these particular states? Second number का statement है, the Constitution of India and the US, okay, envisaged a dual policy for, like, they have dual policy, one for US, one for union and one for state, and but a single citizenship. Okay, ऐसा है क्या? Second statement is a naturalized citizen of India can never be deprived of his citizenship. इसमें दिया हुआ है कि एक जो नेचुरलाइज सिटीजन होगा इंडिया का, उसको कभी भी अपनी सिटीजनशिप से डिप्राइव नहीं किया जाएगा. सो स्टेटमेंट सिर्फ ये दो स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड. ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, आर्टिकल 371 A and I, A to I, in fact A to I, they were inserted to, like, they have about the Nagaland, Assam, Manipur, Mizoram, Andhra Pradesh, Sikkim, Arunachal Pradesh and Goa, right? और ये दो जो स्टेटमेंट्स हैं, these two statements are incorrect. इनको डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, Constitution of India envisaged a single policy for both the state and the unions. ठीक है, तो हमारे पास सिंगल पॉलिसी है. Okay, now if a person has been sentenced for the imprisonment for 2 years और उससे ज्यादा के लिए अगर उसको imprisonment कर दिया जाता है after his registration or naturalization, तो उसकी जो citizenship है उसको terminate कर दिया जाएगा. Okay, so this is it. Moving ahead, next question पे चलते हैं. Part 9 of the Indian Constitution. ये प्रोविजन रखता है फॉर पंचायत एंड इट वाज इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992. पार्ट 9A of the Indian Constitution of India, it contains the provisions for the municipalities, and Article 243Q, it has 2 types of municipalities. ये बोल रहा है कि ये आर्टिकल 243Q जो है, इसके पास सिर्फ 2 टाइप की म्युनिसिपैलिटीज का प्रोविजन है. दैट इज म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कोऑपरेशन फॉर एवरी स्टेट. सो देखिए, इसके अंदर 3 टाइप के जो स्ट्रक्चर है उसकी बात की गई है. तो सिर्फ और सिर्फ ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ व्हाट 3 टाइप? नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कोऑपरेशन. ठीक है, इन तीनों की बात की गई है आर्टिकल 243Q में. ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज नो चाइल्ड बिलो द एज of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any hazardous and other hazardous employment. तो ये बड़ा ही डायरेक्ट क्वेश्चन है. इसमें पूछा है ये पर्टिकुलर क्लॉज किस आर्टिकल में है? 24, 45, 330 एंड 368. ठीक है, इट कम्स अंडर फंडामेंटल राइट्स, तो आर्टिकल 24.
आर्टिकल 24 में है। हम पहले भी काफी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आर्टिकल 24 it says that no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or any mine or he shall be engaged in any other hazardous employment। ठीक है, ये बात हो गई आर्टिकल 24 की। लेट्स मूव अहेड। ये जो दो लिस्ट है हमें इनको मैच करना है। लिस्ट 1 में आर्टिकल्स दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में उसमें जो प्रोविजंस है वो दिए गए हैं। 14(1), 15(2), 16(3) and 17(4। लिस्ट में you have options like the state shall not discriminate against any citizen on the grounds only of the religion, race, caste, sex, place of birth or any other item। Discrimination वाला clause। The state shall not deny to any person equality before law or equal protection of law and within its territory of India। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ वाली बात। अनटचेबिलिटी वाला क्लॉज है, इट इज एस्टैब्लिश्ड एंड इज प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज प्रोहिबिटेड। And the last one, there shall be equality of opportunity for all the citizens in the matters relating to the employment and appointment in any office under the state। So इसके हम डायरेक्ट आंसर्स पे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 14 it talks about one should not deny any person for equality before law or equal protection of law। आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 15 है डिस्क्रिमिनेशन वाला। Right, the state shall not discriminate any person on the grounds of religion, sex, caste, place of birth or any other item। Right to right against discrimination। 16 आर्टिकल में दिया हुआ है there shall be equality for opportunity to all the citizens in the matter of employment। ठीक है, ये वाली बात आर्टिकल 16 में है। आर्टिकल 17 it's about the untouchability वाला clause। Untouchability is abolished and the practice in any form is forbidden। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, यू नीड टू जस्ट चूज द करेक्ट वन। ठीक है, उनको मैच करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following articles of the Constitution of India says that the executive power of every state shall so exercise as not to impede or prejudice the exercise of the judicial executive power of the union। ठीक है, इनमें से किस आर्टिकल में ये दिया हुआ है? आर्टिकल 257, आर्टिकल 258, 355 और 358। हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। आंसर इज 257। इट सेज अबाउट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट सेज दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट should be exercised but not to impede or prejudice the matters or the executive powers which are there in the union। ठीक है, आर्टिकल 257। आर्टिकल 258 में क्या है? आर्टिकल 258 में है द यूनियन टू पावर ऑफ यूनियन टू कन्फर पावर्स ऑन द स्टेट इन सर्टेन केसेस और इन सर्टेन मैटर्स। 355 duty of a union to protect the states against external aggression or internal disturbances। फिर 356 very famous proclamation of emergency like the provision in the case of failure of the constitution machinery in the states। ठीक है, ये हो गया। Let's move ahead। Which one of the following statements has correctly described the fourth schedule of the Indian Constitution? इनमें से किस स्टेट में fourth schedule के थ्रू क्या लाया गया था? क्या है? So 1, it contains the scheme of the distribution of powers between the union and the state। B, it contains the languages listed in the constitution। C, it contains the provisions regarding the administration of tribal areas। and D, it allocates the seats in the council of state। See, option number D is correct। It is there in the which fourth schedule। अब हम ये सारे किस शेड्यूल्स में आते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ शेड्यूल एलोकेट्स द सीट्स इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट, दैट इज द राज्यसभा। ठीक है, सेवेंथ शेड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। एथ शेड्यूल वेरी फेमस लैंग्वेजेस वाला। ठीक है, क्वेश्चंस भी रिपीटेडली आते हैं एथ शेड्यूल पे, तो याद रखिए इसको। इट कंटेन्स द लैंग्वेजेस व्हिच आर लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड फिफ्थ शेड्यूल कंटेन्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन इन द ट्राइबल एरियाज। ये सारी बातें हो गई शेड्यूल्स के बारे में। Let's move ahead। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following schedules, again schedule पे क्वेश्चन है, which one of the following schedule of the Indian Constitution lists the names of the states and specifies their territories? इनमें से कौन सा शेड्यूल है? It lists the
नेम्स ऑफ द स्टेट्स और उनकी टेरिटरीज को स्पेसिफाई करता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला चैप्टर, दैट इज द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट नेम्स द स्टेट्स एंड स्पेसिफाइज देयर टेरिटरीज। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Next question, which of the following constitutional amendment are related to the rising of the number of the members of Lok Sabha to be elected from the states? ठीक है, इनमें से किस amendment में जो है which is related to this particular thing? 6th and 22nd, 13th and 38th, 7th and 31st and 11th and 42nd. So it is the 7th and 31st Amendments Act, ठीक है। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो 7th Amendment Act 1956, it provides for the composition of House of the People and readjustment after every census. Okay, every census के बाद इसका readjustment होना चाहिए, इसका provision है यहाँ पे। 31st Act 1973 के अंदर बढ़ाई गई थी, raising the upper limit for the representation in the states, which is in the Lok Sabha, from 500 to 225, and it also reduced the upper limit for the representation of the union territories from 25 to 20. तो ये दोनों हो गए। Let's move ahead again. मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आइटम्स दिए हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, और लिस्ट 2 में कंट्री फ्रॉम इट वाज डिराइव्ड। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, इट्स बीन इंस्पिरेशन फ्रॉम सेवरल अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। काफी सारे फीचर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो है वो बाकी दूसरी कंट्रीज से लिए गए हैं, उनसे इंस्पायर्ड है, राइट। तो ये हम पढ़ते हैं, इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, बट इधर पे लिस्ट दे दी है। सच एज डीपीएसपी कहां से लिया है, फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट इन द यूनियन स्टेट रिलेशंस वाला सिस्टम कहां से लिया है, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट विद अ ग्रेटर पावर टू यूनियन, ये वाला सिस्टम्स, दीज आर द आइटम्स व्हिच आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हें किस कंट्री से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, यूके, यूएसए। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डीपीएसपी दे आर ब्रॉट from the Ireland. फिर आया फंडामेंटल राइट्स, they are brought from the United States of America. फिर आया concurrent list is derived, like it's inspired from Australia and India as the union of the state with a greater power with the union. ये जो है वो कनाडा से लिया गया है, ठीक है। Let's move ahead to the next question. Which one of the following articles in the Indian Constitution provides that it shall be the duty of the Union to protect every state against the external disturbances, aggression? ये फिर से आ गया क्वेश्चन, ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया है। Let's move ahead. The 9th schedule of the Indian Constitution was added by, 9th schedule किस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से ऐड किया गया है? तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, 1st, 8th, 9th एंड 42nd. सो द आंसर इज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें जो है 9th शेड्यूल को इंसर्ट किया गया था, ओके। Now the next question, which one of the following articles of the directive principles of the state policy deals with the promotion of internal peace and security? So DPSP में बात की गई है that DPSP has directed the states that it is the responsibility of the state, that is the country, to protect and to promote the international peace and the security. तो ये बात किस पर्टिकुलर आर्टिकल में है? 51, 48A, 43A और 41। बहुत इजी क्वेश्चन है, इट इज इन द 51, ओके, आर्टिकल 51। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ द डीपीएसपी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश, यानी कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंसर्ट किया गया तो उसका एम क्या था, ठीक है, ये बताना है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंश्योर करने के लिए, सोशल डेमोक्रेसी इंश्योर करने के लिए, गांधीयन डेमोक्रेसी इंश्योर करने के लिए, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इंश्योर करने के लिए। सो इट इज द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जिसको इंश्योर करना था। दैट वाज द पर्पस टू फॉर द इंक्लूजन ऑफ द डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज एस्टैब्लिश्ड बाय द फंडामेंटल राइट। Now let's move ahead. Next question is, the primary function of the Finance Commission in India is to
फाइनेंस कमीशन जो है इंडिया में, उसका प्राइमरी बेसिक फंक्शन क्या है? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आप पढ़िए. द फर्स्ट ऑप्शन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, prepare annual budget, advise the president on the financial matters, and allocate the funds to various ministries of the union and the state government. So ये जो है advises the president on the financial matters. This is the primary function of the फाइनेंस कमीशन. इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं. ठीक है. फाइनेंस कमीशन can only advise the president on the financial matters such as the distribution of net proceeds to the taxes between the union and the states and the principles which it should govern in the like grant in aid में हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, क्या रोल रहता है ग्रांट इन एड में. तो ये सारी चीजें जो है फाइनेंस कमीशन के प्राइमरी फोकस होते हैं. Next question, consider the following statements about the Attorney General of India. Attorney General of India पे question है. First option है he is appointed by the President of India and जो कि है वो President जो है इन्हें appoint करता है. Second, he must have the same qualification as required for the judge of the Supreme Court. Third one, he must be a member of either house of the parliament and he can be removed by impeachment of the parliament. See देखिए, अटॉर्नी जनरल के बारे में impeachment की procedures नहीं दी हुई हैं, which are there, but he must be a member of either of the parliament. तो क्या है वो, he can attend the parliamentary proceedings, talk in the proceedings, but he should उनका compulsory नहीं है that he must be the member of the in any of the part either of the parliament, be it लोकसभा और राज्यसभा. ठीक है, ये अटॉर्नी जनरल के बारे में हो गया. क्वेश्चन तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट. क्वालिफिकेशन शुड बी द सेम एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड उनको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करते हैं. आर्टिकल 76 में जो है इम्पीचमेंट का प्रोसीजर नहीं है एंड ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करेगा एंड ही मस्ट नॉट बी द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. अटॉर्नी जनरल का क्वेश्चन हो गया. Now let's move ahead. Now the next question is the speaker can ask a member of the house to stop speaking and let the other member speak. ये जो प्रोविजन है इसको, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? आपने कई बार अगर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स देखी होंगी तो ये हर चीज देखने मिलती है. तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? डेकोरम ऑफ द हाउस, क्रॉसिंग द फ्लोर, interpellation और yielding the floor. So answer is the yielding the floor. ठीक है, इसको बोलते हैं जब स्पीकर जो होता है किसी मेंबर को बोलता है कि आप you should stop and let other members speak. This is the yielding the floor. बाकी की चीजें भी हम समझ लेते हैं. Decorum का मतलब क्या होता है? Means proper parliamentary etiquettes. Okay? ये होता है decorum. Interpolation means seeking clarification through ruling. And crossing the floor means vote against the party lines. Yielding the floor means speaker can ask any member of the parliament or the house to stop speaking and let the other person speak. Moving ahead, next question is which one of the following objectives of the Commission for Agricultural Cost and Prices. Commission for Agriculture Cost and Prices जो है उनके objectives क्या हैं? 1, to stabilize the agricultural prices. 2, to ensure the meaningful real income level to farmers. 3rd, to protect the interest of customer by providing the essential agricultural commodities at reasonable rates through public distribution system. And 4th, to ensure the maximum price for farmers. ये ऐसा कुछ होता तो नहीं है. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. मैक्सिमम प्राइस फार्मर्स को इंश्योर करना इस कमीशन का काम नहीं है. नाउ ये जो पॉलिसी है, इट इज टू ब्रिंग द बैलेंस एंड इंटीग्रेटेड प्राइस स्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज एंड नॉट टू इंश्योर द मैक्सिमम प्राइस फॉर फार्मर्स. Next question, the fundamental objective of पंचायती राज सिस्टम is to ensure which among the following. यानी कि पंचायती राज सिस्टम जो है उसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इंश्योर करना है. इस टाइप का क्वेश्चन पंचायती राज पे हम डिस्कस कर चुके हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया है. 1, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट. 2, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी. 3, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. एंड 4th one is the
फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, सी ऑल दो ये सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स हैं दे अप्लाई कि हाँ पंचायती राज सिस्टम एंश्योर्स ऑल ऑफ देम, बट वी नीड टू चूज द अप्रोप्रिएट वन. द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन इज द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज एंड इन द डेवलपमेंट ऑफ द लोकल रीजन एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. तो था वो तो मेन ही एम था, यानी है ना, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी. उनकी मेन रिकमेंडेशन थी कि जो है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन आना चाहिए देश में. उसी की वजह से 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए गए, जिसके थ्रू पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज का गठन हुआ. ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पंचायती राज गवर्नमेंट की. नाउ लेट्स मूव अहेड. Okay, now the next question is the government enacted the Panchayat extension to scheduled areas. PISA Act के बारे में question है. In 1996, when which of the following is not identified as its objective? इनमें से क्या PISA Act का objective नहीं है? 1. To provide self-governance. 2. To recognize traditional rights. 3. To create autonomous region in tribal areas. And D. To free tribal people from exploitation. इनमें से क्या जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है? So it is the create autonomous region in tribal areas. ठीक है, ऑटोनॉमस रीजन क्रिएट करना इसका एक्ट का ऑब्जेक्टिव नहीं था. सेल्फ गवर्नेंस ऑब्जेक्टिव था. सी पीसा एक्ट क्या था, जो भी 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है पंचायती राज गवर्नमेंट का, उसमें जो भी लॉज नहीं थे ना, वो सारे लॉज इन्होंने किसके थ्रू लेकर आ गए थे? पीसा एक्ट के थ्रू लेकर आ गए थे. ठीक है, तो ये वही था. तो ऑब्वियसली सेल्फ गवर्नेंस है, ऑब्जेक्टिव है. ट्रेडिशनल राइट्स ये क्या है ना, जो ये एक्ट लाने के बाद से इट हैज टू बी एंश्योर्ड दैट कि जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं स्पेशली फॉर द ट्राइबल्स वो जो है इंश्योर करें. ठीक है, दिस इज ऑल्सो टू एंड फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. जितना भी अनरीच ट्राइबल एरिया है ना वो इस एक्ट के थ्रू कवर होना था. राइट, so since the law do not cover automatically cover the schedule areas, यानी कि जो लॉज थे वो कवर नहीं हुए थे, वो इसमें शेड्यूल एरियाज के वो इस एक्ट में कवर हो गए थे. ठीक है, द प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्राइबल सेल्फ रूल इन शेड्यूल एरियाज. ठीक है, ये जो था वो प्राइम ऑब्जेक्टिव था. नाउ पीसा एक्ट इट रिकॉग्नाइजेस द ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ आदिवासीज सच एज, कैसे राइट्स, जैसे कि ओनरशिप ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द माइनर वाटर बॉडीज, प्रिवेंशन ऑफ एलिनेशन ऑफ ट्राइबल लैंड्स एंड इस टाइप के जो इश्यूज हैं वो सारे रिकॉग्नाइज करता था पीसा एक्ट ऑफ आदिवासीज. ठीक है, ये जो था पीसा एक्ट था. ना सो गाइज आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, दे आर इनफ आई गेस. आज के लिए हमने काफी सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए. ये काफी पुराने ईयर्स के क्वेश्चन हैं, इनमें से आपको काफी पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस या फिर जो है एक्ट्स के बारे में भी डिस्कस किया गया है, क्योंकि वो उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी न्यूज में थे और कंटेम्प्रेरी वो जो है चीजें चल रही थी. बट स्टिल एक बार आइडिया मिल जाता है कि हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर्स पेपर्स. तो दिस इज इट फॉर दिस सेशन. मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ, ये तो पॉलिटी के हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चंस आंसर्स और उनके एक्सप्लेनेशंस देखे. अगर आपको पूरा कोर्स ज्वाइन करना है, यू कैन ज्वाइन द इंडियन पॉलिटी कोर्स प्रोवाइडेड बाय द JVS-IS. अदरवाइज इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एनी अदर सब्जेक्ट सच एज द सोशल इश्यूज, करंट अफेयर्स, of course comprehensive geography, Indian economy, you can join the courses, or else all the GS integrated courses you can join, and if you have time you can join the Super 50 program for 2 years. So this is it for this session. I hope आपको ये session पसंद आया. I'll see you in the next session. Till then take care. Bye bye.